everyone. In this session, we will continue exercise 9.2. Last session के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था. Now question number 7. We need to verify here the given function is a solution of the corresponding differential equation. वो आपको verify करना है. तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है that is xy is equals to log y plus c. xy is equals to log y plus c. Here only one arbitrary constant is there. तो differential equation जो form होगा that will be the first order differential equation. Okay. यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं तो किस तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं? हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वेरीफाई कर रहे हैं, राइट? मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 9.3 है दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है एंड दैट कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए यहाँ पे? तो dy by dx is equals to y square upon 1 minus xy आना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखाना है. So now xy is equals to log y plus c is given. Function xy is equals to log y plus c is given. So differentiate with respect to x on both the sides. So d by dx of xy is equals to d by dx of log y plus c. तो क्या होगा? xy का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, y as it is, x as it is, y का डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to on the right side log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y into dy by dx plus c का डिफरेंशिएशन 0, राइट? सो क्या हो गया हमारे पास? y plus x into dy by dx is equals to 1 upon y into dy by dx. dy by dx is equals to के फॉर्म में लिखना है तो dy by dx वाला टर्म एक साइड लिखना पड़ेगा. तो पहले हम यहाँ पे y जो डिनोमिनेटर के वो अंदर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या होगा? y स्क्वायर प्लस xy into dy by dx is equals to dy by dx. So xy into dy by dx, right, minus dy by dx, okay, is equals to minus y square plus y square को माइनस लिख दिया. तो dy by dx कॉमन, तो अंदर कितना हो जाएगा? xy minus 1 is equals to minus y square. Therefore dy by dx is equals to minus y square upon xy minus 1, or you may write y square upon 1 minus xy, because ऊपर नीचे माइनस साइन मैंने कॉमन ले ली. तो y square upon 1 minus xy हमको चाहिए यहाँ पे, so that we here got. So finally dy by dx is equals to y square upon 1 minus xy. Therefore given function is the solution of corresponding differential equation. Next, question number 8, y minus cos y is equals to x, and we need to form the differential equation y into sin y plus cos y plus x multiply by dy by dx is equals to y. ऐसा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो dy by dx is equals to y dividing by y sin x plus cos y sin y plus cos y plus x, right? dy by dx is equals to y upon y into sin y plus cos y plus x. ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं इसको. y is equals to, sorry, y minus cos y is equals to x is given. So differentiate with respect to x. So d by dx of y minus cos y is equals to d by dx of x. तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, cos y का माइनस sin y, तो माइनस माइनस प्लस sin y into dy by dx, चेन रूल, राइट, is equals to d by dx by dx, that is x का डिफरेंशिएशन is equals to 1. तो हमारे पास हो गया dy by dx. अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा? 1 plus sin y is equals to 1, right? So or you may write dy by dx is equals to 1 upon 1 plus sin y. हमको यहाँ पे चाहिए y upon y sin x plus cos y plus c. ओके, हमको यहाँ पे ये फॉर्म चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? y into sin y, सॉरी माय मिस्टेक, y into sin y. ओके, तो ऊपर भी y चाहिए, नीचे भी y, राइट? तो एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे y से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो dy by dx is equals to y upon y plus sin y, सॉरी y into sin y, राइट? y plus y into sin y. ना ऊपर का y हो गया, नीचे y into sin y हो गया. अब cos y plus x, तो यहाँ पे तो ओनली y दिया हुआ है. तो नाउ गिवन डेटा में जो फंक्शन है दैट इज y माइनस cos y इज इक्वल टू x.
तो y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, cos y प्लस एक्स लिख सकते हो। सो dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में आपको लिखना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन cos y प्लस एक्स। तो y अपॉन cos y plus x plus y sin y as it is. So the finally dy by dx is equals to y upon y sin y plus cos y plus x हो गया। रीजन यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज गिवन दैट y माइनस cos y is equals to x ये दिया हुआ था। सो फाइनली y into sin y plus cos y plus x multiply by dy by dx is equals to y. Hence it is proved. Okay. Question number 9. X plus y is equals to tan inverse y, and you need to form y square into y dash, that is nothing but y square into dy by dx plus again y square plus 1 is equals to 0. This we need to form. Okay. So chalo, here it is given that x plus y is equals to tan inverse y. So differentiate with respect to x on both the side. So dx x का differentiation 1, y का dy by dx is equals to tan inverse y का 1 upon 1 plus y square into dy by dx. Okay. So 1 is equals to dy by dx into 1 upon 1 plus y square minus dy by dx. तो 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस टू गेट कैंसर। तो क्या हुआ, सो 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यही फॉर्म हमको यहाँ पे चाहिए, y डैश इंटू वाई डैश सॉरी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो द फाइनली वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हेंस इट इज प्रूव। नेक्स्ट question number 10, y is equals to square root of a square minus x square where x belongs to minus a to a, and we need to show that it is a differential equation of solution of the differential equation x plus y into dy by dx is equals to 0। यहाँ पे only one constant is given a, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म हो रहा है। सो नाउ y is equals to root of a square minus x square। ओके, यहाँ पे पहले आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दो बिकॉज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स है ना, तो वापस नीचे रूट के अंदर फॉर्म हो जाएगा ए वाला फॉर्म। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, ए डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x। तो क्या मिला हमको यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 टू कैंसल, सो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लिख देते तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो हेंस अगेन इट इज प्रूव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू दिया हुआ है, तो एमसीक्यू इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए इन द जनरल सॉल्यूशन, तो वी नो दैट जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, तो रिवर्स भी ऐसा ही। ओके, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा 4 जनरल सॉल्यूशन के अंदर। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज हम एक्स एंड वाई की कंडीशन पुट करेंगे ना तो आर्बिट्री कांस्टेंट निकल जाएंगे, ठीक है।
सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट 12 नंबर, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। अगर जनरल सॉल्यूशन अगर पूछा होता तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल के अंदर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होते, बट यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर 0। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब क्या, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, हमने जो देखा था लास्ट सेशन के अंदर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फॉर्म होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अननोन 2 a एंड b, आपको इसको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी चला था। अगर यहाँ पे आप x इक्वल टू x एंड y की पर्टिकुलर कोई वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द ओनली वन कर्व, तो दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 9.3, विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हम कर रहे थे। ओके, तो 9.3 अभी हम स्टार्ट कर देते। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करना है, तो आपको क्या करना है, you have to eliminate the arbitrary constant। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको मे बी डायरेक्टली कोई फंक्शन दिया होगा, या तो पहले तो फंक्शन फॉर्म करना, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी कोई भी एक, या तो ऐसा मतलब फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। तो सर्कल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। Form a differential equation of family of parabola having the vertex at origin and axis along the positive y-axis, right? Then form a differential equation of the family of ellipse having the foci on y-axis and center at origin। तो पहले आपको फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर भी बोला था आपको कि भाई चैप्टर नंबर 10 एंड 11 स्ट्रेट लाइन, 11 स्टैंडर्ड एंड 11 दैट इज कॉनिक सेक्शन, वो 2 चैप्टर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भाई एक्सिस कहाँ पे होगा, एक्सिस के अलोंग, अगर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है तो पैराबोला कैसा फॉर्म होगा, इलिप्स कैसा होगा, राइट। तो वो आपको पहले देखना है, और कुछ नहीं यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन 9.3, in each of the exercise from 1 to 5 form a differential equation represent the family of curves by the eliminating arbitrary constant a and b। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी को एलिमिनेट करो, फिर भी आपको करना ही है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। सो x upon a plus y by b is equals to 1 is given and here to form the differential equation। तो चलो x by a plus y by b is equals to 1। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल bx plus ay is equals to ab, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एकदम इजी है। तो bx का डिफरेंशिएशन b, ay का a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो नाउ a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, माइनस b, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो तो आपको पता है। तो आपको मैक्सिमम ट्राई ऐसी करने के भाई कांस्टेंट अलग से हो जाए। अगर यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएट करोगे ये फॉर्म, तो b तो 0 हो जाएगा, ये वापस बचेगा, तो एक ही वैल्यू आपको वापस लिखनी पड़ेगी, है ना। तो आप मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम जो टर्म है उसके अंदर वो कांस्टेंट वाले लिखो, या तो कांस्टेंट को है वो अलग से लिखना ट्राई करो, ठीक है। नाउ अगेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन इज द आंसर। ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिव्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अभी आपको हमारे पास है नहीं, मतलब यहाँ पे हमको सोल्व नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सोल्व करना है, बट सेकंड ऑर्डर
d square y by dx square is equals to 0, that is second order. So d square y by dx square is equals to 0 always represent a straight line. Second, y square is equals to a into b square minus x square. Here again two unknown a and b. Okay, so आप कैसे a and b बोल सकते हो पता है, a b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर ऐसा होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने, ओनली वन. ए बी स्क्वायर तो ओनली वन इसको कंसिडर करेंगे, राइट. ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर. तो ए के पूरा एंड दिस वन इज द सेकंड. ओके, तो हियर टू अननोन्स. So y square is equals to ab square minus ax square. We need to form the differential equation. Second order differential equation यहाँ पे form होगा. तो first of all differentiate with respect to x on both the sides. So y square का 2y into dy by dx is equals to ab square का differentiation 0 minus a as it is x square का 2x. So 2y into dy by dx is equals to minus 2ax. तो 2 cancel, right? Now अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो a बचेगा, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. ओके, तो आप दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो. फर्स्ट देखो, वापस डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स एंड ये जो डी वाई बाई डी एक्स था वो एज इट इज इक्वल टू माइनस एक्स का माइनस ए. ओके, तो y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए दिया हुआ है ना. तो माइनस ए इज नथिंग बट यहां से माइनस ए क्या होगा, तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो माइनस ए दैट इज y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ओके, तो x मल्टीप्लाई कर देते, तो एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो फाइनल इक्वेशन इज एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एक फर्स्ट मेथड थी. सेकंड, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, राइट. y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा दिया हुआ है. अभी हमने डिस्कस किया कि भाई कांस्टेंट है उसको अकेले में रखो तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0. उसका डिफरेंशिएशन विल बी 0. सो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट. अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड. लेफ्ट साइड में कितने फंक्शन है, पहले तो लेफ्ट साइड के अंदर कितने फंक्शन है, तो एक x है, सेकंड y है एंड थर्ड इज dy बाई dx. तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द थ्री फंक्शन, राइट. सो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो x इंटू सॉरी 1 अपॉन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन रूल 1 अपॉन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस y बाई एक्स एज इट इज, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. सो 1 अपॉन एक्स into dy by dx again, right, plus y into dy by dx, 1 upon x का minus 1 by x square plus y by x, dy by dx of dy by dx of dy by dx, that is nothing but d square y by dx square is equals to 0, right. तो x LCM ले लेते, तो 1 upon x कॉमन, dy by dx whole square plus xy, सॉरी एक्स स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, राइट. प्लस यहाँ पे एक्स ही है तो एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई
dx square is equals to 0. वन x square कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली xy into d square y by dx square, okay, then plus x into dy by dx whole square minus y into dy by dx is equals to 0. दोनों में सेम ही आंसर, एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स. तो कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो. तो इस सेशन के अंदर यहाँ तक. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.